Was why the Indian American diaspora has been so silent about all of this. One of the congresswomen said that not one phone call has come to her office. H1B वीजा पर ट्रंप ने बढ़ाया शुल्क, जर्मनी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जर्मन राजदूत फिलिप ने कुशल भारतीयों को जर्मनी आने का दिया न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और अमेरिका में रह रहे भारतीयों को परेशान करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले टैरिफ लगाया और फिर H1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क, जिसने प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की चुप्पी। जी हां, इस चुप्पी को लेकर ही अब कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने चिंता जाहिर की है। शशि थरूर ने यह कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की चुप्पी जो है वो चौंकाने वाली है। जब अमेरिका की सरकार भारत के खिलाफ प्रतिकूल फैसले ले रही है, तब वहां की भारतीय अमेरिकी आबादी को खुलकर बोलना चाहिए। उन्हें अपने देश के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये बड़ी बात शशि थरूर के जरिए कही गई। दरअसल संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने अमेरिका से आए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और हालिया जो फैसले हैं उनको लेकर चिंता भी जाहिर की। समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले किसी भी भारतीय अमेरिकी ने अपने मूल देश के लिए हमसे पैरवी नहीं की है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? यह सवाल भी शशि थरूर के जरिए पूछा गया है। किस तरीके से शशि थरूर भड़के हैं? कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। आखिर वो टैरिफ पर चुप रहे और उसके बाद H1B वीजा पर भी चुप है। आखिर क्यों? यही सवाल किए गए हैं। क्या कहा है शशि थरूर ने, जरा सुनिए। We had a very good visit from a US congressional delegation which consisted of 5 members of the US House of Congress who happened all to be from the Democratic Party, and 4 of them were from California, but they had tremendous interest in India. I think the most important message that came out from them was that a lot of American opinion, including in the US Congress, is still very strongly committed to the Indian relationship, to the strategic partnership, that India is valued and that they remain determined to strengthen that relationship despite the recent setbacks that we are all familiar with, the H1B visa setback, the 50% tariff setback, the sanctions on the Chabahar port, and various other things which have made life a bit difficult in the Indo-US relationship currently. I do want to stress that one of the points we raised was why the Indian American diaspora has been so silent about all of this. One of the congresswomen said that not one phone call has come to her office from any Indian American voter asking for her to support a change of policy. And this is something that is surprising, and that I think we all need to reach out to the Indian American population saying, if you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it, speak for it, and make more of an effort to press your political representatives to stand up for India. But the ones who came here are already friends of India, well disposed towards India, and they have spoken very warmly and positively of the relationship. Sir, today committee also discussed India-Sri Lanka relationship. Yes, that I cannot speak about in detail because we obviously can only speak about the content of the meeting when the report is prepared. But it was a very excellent briefing by the Foreign Secretary on all aspects of the India-Sri Lanka relationship, an extremely important relationship for us with a very close neighbor. Sir, China has a lot of interest in Sri Lanka, so yes, that was also discussed. मैं आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें H1B वीजा आवेदकों के लिए अब $1 लाख का भुगतान करना होगा। इससे टेक कंपनियों समेत भारतीय कर्मचारियों में खलबली मच गई है।
हालांकि अब अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। बता दें कि 71 से 72% H-1B वीजा भारतीयों को प्राप्त है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर परेशानी वहां पर बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिर छुप क्यों हैं भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं, इस वीजा पर गए हैं? तो ऐसे में इस तरीके से लगातार अब भारत में भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वहीं अमेरिका में H-1B वीजा के लिए $1,00,000 यानी करीब 86 लाख रुपए का शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद जर्मनी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं जो ट्रंप भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीयों को परेशान करने में लगे हुए हैं, उन्हें जर्मनी ने जवाब दिया है। दरअसल जर्मनी विभिन्न क्षेत्रों में कुशल भारतीयों को जर्मनी आने का न्योता दे रहा है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की बात भी जर्मनी की तरफ से कही गई है। भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने यह संदेश एक्स हैंडल के जरिए जारी किया। उन्होंने अपना वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सभी उच्च कुशल भारतीयों से मेरा ये आह्वान है कि जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और IT प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोजगार अवसरों के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। एकरमैन ने यह भी कहा कि जर्मनी में भारतीयों के काम करने के विषय में बात करने का अच्छा मौका है। जर्मनी में भारतीय सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में से एक है। ये बड़ी बात भी उनके जरिए कही गई है। साथ ही आगे एकरमैन ने यह भी कहा कि जर्मनी में काम करने वाला औसत भारतीय जर्मनी में काम करने वाले औसत जर्मन से ज्यादा कमाता है और ये बहुत अच्छी खबर है। इस तरीके से एकरमैन ने कहीं ना कहीं कुशल भारतीयों को जर्मनी आने का, वहां काम करने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की प्रवासन नीति जो है उस पर भी बात की और कहा कि हमारी प्रवासन नीति कुछ जर्मन कार की तरह काम करती है। यह विश्वसनीय है, आधुनिक है और साथ ही पूर्वानुमानित है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों के सहारे भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं टैरिफ लगाकर, तो कभी इस तरीके से H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाकर, लेकिन चाहे जर्मनी हो और चाहे फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, लेकिन इन सब के बीच जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सवाल किया गया कि भारत और चीन यूक्रेन युद्ध में योगदान दे रहे हैं, तो जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। ऊर्जा के मामले में हमारी समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उनका समाधान किया जा सकता है। यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए, हमें भारतीयों से दूर नहीं हटना चाहिए। यह बड़ी बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है। यानी यहां भी ट्रंप को जेलेंस्की एक तरीके से बड़ा झटका दे रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस के साथ करीबी बढ़ा रहा है और यूक्रेन को दरकिनार कर रहा है, लेकिन यहां पर तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही ये मान रहे हैं कि नहीं, भारत उनके साथ है और इस तरीके से हमें दरअसल भारत से दूर नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रंप लगातार मुश्किल में इन फैसलों के साथ ही बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।